when two or more people combine their efforts to earn profit by contributing their capital into the business, then it is called partnership. The minimum number of partners is 2 and the maximum number of partners are 20. Profit and loss sharing ratio between the partners can be 3:2, can be 2:1, can be any other ratio. Then it comes partnership salary, interest on capital or interest on drawings. This is basically comes in partnership, but we'll discuss it later on. First, we need to discuss about fluctuating capital account and fixed capital account. Now let's see what is fixed capital account. Whatever you were studying, what is fluctuating capital account? Whatever you were studying earlier, that were all fluctuating capital accounts, because the opening capital and the closing capital are not the same. They are continuously changing. Why they are changing? Because profit will be added into capital and losses will be subtracted from capital and drawings will be subtracted from capital. So that's why the opening and closing capital cannot be the same. We start from the opening capital. Then we used to add profit into it. Matlab, if I will just take an example, then the capital at the start या beginning में capital is 10,000. We will add net profit into capital, which is 5,000 less drawings 8,000 comes 7,000. Okay ji, so capital add net profit less drawings comes 7,000. It means this is opening capital, this is closing capital. So whatever we were studying earlier in sole trader, in final accounts of sole trader, the opening and closing capital can never be the same. It will continue to change because of profit and drawings. So that is called as fluctuating capital account, because the capital of the business, capital of the partners, capital of the business will always change from year to year. It will continue to change. सर फिर से बता दें जी. Partnership क्या होती है? When two or more people combine their efforts to run the business, they used to contribute their capital into the business, and the minimum number is 2 and the maximum number is 20. That is called partnership. There is going to be a partnership deed between the partners. It is called partnership agreement, and they agree upon a certain percentage of profit between each other. For example, अनस मैं और आप पार्टनरशिप करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो होगी 3:1, यानी 3/6 मैं लूंगा प्रॉफिट, 2/6 आपको मिलेगा और 1/6 अनस को मिलेगा. इफ वी आर एग्री विद दैट, वी विल कंटिन्यू द पार्टनरशिप whatever capitals we have contributed to run the business. But कैपिटल जो है वो दो किस्म के होते हैं. एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और एक फिक्स कैपिटल अकाउंट. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट तो वही है जो हम पहले पढ़ते आए हैं, उसमें कोई चेंज नहीं. उसी को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कहते हैं जो हम पहले पढ़ते रहे हैं. यानी कि कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, चेंज होता रहता है फ्रॉम ईयर टू ईयर. इट विल कंटिन्यू टू चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर. ठीक है जी. इट विल नॉट बी स्टैग्नेंट. वो आपका क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा. वो कैसे चेंज होता रहेगा वो मैंने आपको बता दी है. कैपिटल अगर स्टार्ट में दिया हुआ 10,000, उसमें हम ऐड कर लेते हैं नेट प्रॉफिट 5,000 का, लेस कर लेते हैं ड्राइंग्स 8,000 की, तो आपका आ जाता है 7,000. इसका मतलब है कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल जो है वो आपका डिफरेंट है. ओपनिंग 10,000 है, क्लोजिंग जो है वो आपका कितना क्या है? 7,000 है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर साल आपका कैपिटल जो है वो क्या हो रहा है? फ्लक्चुएट हो रहा है. फ्लक्चुएट होने का मतलब है चेंज होता जा रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. इसे कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट वही है जो हम पहले पढ़ते रहे हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं है. अब है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट. फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मतलब है कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल रिमेन फिक्स्ड. हम वो चेंज नहीं करेंगे. सर अगर कैपिटल के पार्टनर्स के अकाउंट फिक्स रखेंगे तो फिर प्रॉफिट किस में ऐड होगा? ड्राइंग किस में माइनस होगी? उसके लिए हम सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसे कहते हैं करंट अकाउंट. एंड करंट अकाउंट इज बेसिकली ओपन and the profit and drawings will be added and subtracted in current account. इसको हम पढ़ते हैं fluctuating capital account क्या होता है. Fluctuating capital account means all the transactions relating to capital will have a direct effect on capital, as we were doing before. Profit will be added in capital, drawing will be subtracted from capital, and capital will fluctuate as discussed earlier in the balance sheet of sole trader. Fixed capital account हम partnership में maintain करते हैं. और ये क्या होते हैं? The type of capital account maintained
for partnership whether when value of capital will remain fixed and all the transactions relating to profit will be treated in separate account called current account. Current account is a part of capital account and both has a credit balance, and current account is used for the disbursement of for the addition of profit and drawings, the things which are subtracted. और इसमें इनकम स्टेटमेंट जैसे बनती थी पहले वैसे ही बनेगी, सेम जैसे पहले बनाते थे हम, ठीक है जी। बैलेंस शीट जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनेगी, लेकिन एक नया अकाउंट बनेगा जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो आपके सामने नजर आपको आ रहा है। और इस अकाउंट को हमने अब पढ़ना बनाना सीखना है बेसिकली, ये कैसे बनते हैं। उसके फॉर्मेट को आप देखिए जरा और बताएं, यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। जी, सबसे पहले चमन, अनस, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट। सर वो कैसे बनाते हैं? वो क्या हो गया, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी आ जाएगा, ओपनिंग इन्वेंटरी एट परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, माइनस करेंगे, जीपी आ जाएगा, लेस एक्सपेंसेस, आपका नेट प्रॉफिट आ गया। वो जो नेट प्रॉफिट आपने निकाला है वो आप आगे लेके जाएंगे किसमें? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब ये है कि दिस अकाउंट इज बेसिकली प्रिपेयर्ड फॉर द डिसबर्समेंट ऑफ प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स के दरमियान प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ना, वो हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स जो है वो हम करते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है जी। तो एक सेकंड जरा मुझे दीजिएगा। अच्छा जी, अब देखते हैं जी कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो कैसे बनता है। स्टार्ट तो होगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर से। ये कहां से निकला यार? पीछे से इनकम स्टेटमेंट से हमने निकाला है प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसमें ऐड कर देते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स की, ए और बी। फॉर सपोज करें वी हैव टू पार्टनर्स ए एंड बी, तो हम लेस कर देंगे, ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लेस कर देंगे उसमें से हम पार्टनरशिप सैलरी, ठीक है जी, वो ए को भी मिल सकती है बी को भी मिल सकती है। लेस कर देंगे उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट शेड आपका आ जाएगा जो आप ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब बात करते हैं हम कि ये चीजें जो मैंने आपको बताई ये होती क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पार्टनरशिप सैलरी की। सो लेट्स सी दैट Anas, Chaman and Haris started a partnership agreement with the profit loss sharing ratio of 3:2:1, यानी 3/6, 2/6, 1/6। लेकिन अनस जो था ना वो सर्विसेज प्रोवाइड करता था। ही इज ऑल्सो वर्किंग एज ए जनरल मैनेजर इन द पार्टनरशिप, यानी ही इज ऑल्सो वर्किंग एज ए जनरल मैनेजर इन द पार्टनरशिप, यानी ही इज प्रोवाइडिंग हिज सर्विसेज टू द पार्टनरशिप ऑल्सो। तो अनस ने हमें कहा कि यार आप दोनों ने कैपिटल लगाया है, प्रॉफिट तो आप कमा रहे हो, लेकिन आप काम तो कर नहीं रहे, काम सारा मैं कर रहा हूं, तो मुझे क्या फायदा हुआ? मुझे तो नुकसान हो गया, ये तो बात गलत है। इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इन द पार्टनरशिप डीड, वी विल discuss about the agreement between the partners. The profit loss appropriation account is basically prepared for the disbursement of profit or for the division of profit between partners. तो चमन और मैंने फैसला किया कि यार अनस वाकई काम करता है, इतने मेहनत करता है, सारा दिन ऑफिस में बैठा होता है, तो इसके बदले कुछ तो मिलना चाहिए। तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है, हम इसको सैलरी जो है वो पे कर देंगे, हम सैलरी इसको जो है ना वो पे करेंगे, ठीक है जी। यानी जो ये काम करेगा उसके लिए इसको एनुअली
हम कोई सैलरी डिसाइड कर लेते हैं 12,000 हम इसको पे किया करें, तो वो सैलरी जो बिजनेस का तो एक्सपेंस है, तो वो पार्टनरशिप सैलरी माइनस हो जाएगी, किसमें से, नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, इसलिए माइनस हो रही है। और एक अकाउंट में वो सैलरी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, उस अकाउंट में चली जाएगी, बढ़ जाएगा, क्योंकि सैलरी उसको मिलनी है ना, उस अकाउंट में ऐड हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट आया पार्टनरशिप सैलरी का। अब आता है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात। मैंने कहा कि यार सबसे ज्यादा जो कैपिटल है, मैंने 1 करोड़ रुपया लगाया है, आप लोगों ने लगाया है साढ़े 10 लाख रुपए, जबकि प्रॉफिट आपको मिल रहा है, तो मेरा 1 करोड़ रुपया तो ब्लॉक हो गया बिजनेस में। अब बिजनेस में तो लॉस भी हो सकता है, तो मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ रही है, बिकॉज आई कुड हैव यूज दैट मनी फॉर सम अदर ऑल्टरनेटिव पर्पस। द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गोन इज बेसिकली द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मुझे पड़ रही है वो ऑल्टरनेटिव फॉरगो करने की वजह से, ठीक है ना, उसकी बेस पे मुझे कुछ मिल नहीं रहा। लिहाजा मैंने रिक्वेस्ट की चमन और अनस के साथ बैठ के कि भाई मुझे अपने कैपिटल पर इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए, प्रॉफिट लॉस के अलावा, आप लोग भी ले लो। तो मुझे 1 करोड़ पर हमने रख लिया कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अब मुझे वो 1 करोड़ भी मिलेगा 5%, आप लोगों को मिलेगा 10 लाख रुपए, मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे एक फिक्स अमाउंट तो मिल ही रही है ना। उसके बाद अगर लॉस प्रॉफिट हो वो अलग बात है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स को दिया जाएगा बिजनेस के पैसों में से, तो बिजनेस का तो एक्सपेंस है, तो बिजनेस के अकाउंट में से क्या हो जाएंगे, वो पैसे प्रॉफिट में से माइनस हो जाएंगे। ठीक है जी, और उनके अकाउंट्स में, ए और बी के अकाउंट्स में, या जो पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट में पैसे क्या हो जाएंगे, ये बढ़ जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। इसी तरह चमन ने कहा कि सर अनस सैलरी ले रहा है, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने बिजनेस में लेके आ गए हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि आपका सरमाया, आपका जो कैपिटल है वो ज्यादा है, लिहाजा आपको कुछ पैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मिलने चाहिए। हाँ, और मुझे भी मिल रहे हैं, वो ठीक है, चलें मान लेते हैं। लेकिन अब आप बिजनेस से पैसे निकलवा नहीं सकते। अगर फिर भी आप ड्राइंग्स करते हो, क्योंकि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहे हो, ठीक है ना, तो ड्राइंग्स तो फिर नहीं करनी चाहिए ना आपको। इन ऑर्डर टू डिस्करेज ड्राइंग्स बाय द पार्टनर्स, हमने इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट निकाला। इस तरह तो भाई मैं अपनी गाड़ी खरीदने के लिए कोई भी बिजनेस से पैसे में गाड़ी खरीद लूंगा, आपको कि चलो जी ठीक है, नहीं आ रही है एमएचएस, गाड़ी नहीं आ रही, वो ले लेती हूँ मैं, कोई बात नहीं, पैसे निकलवा के। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने रख दी कंडीशन है, टू डिस्करेज ड्राइंग्स सो दैट द पार्टनर शुड नॉट गो फॉर मोर ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो बिजनेस की इनकम होगी, क्योंकि बिजनेस चार्ज करेगा किससे, पार्टनर से, तो बिजनेस की इनकम होगी, तो बिजनेस के प्रॉफिट में क्या हो जाएगी, वो ऐड हो जाएगी। बिजनेस के प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और हम इसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड हो जाएगा, और लेस कर देंगे इसमें से हम, क्या भला, और उनके करंट अकाउंट में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, या उनके अकाउंट में से पैसे माइनस कर देंगे, यानी कि ओनर्स के पैसे, जो पार्टनर्स के पैसे हैं वो कम हो जाएंगे, और बिजनेस की इनकम में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसमें ऐड कर दी जाएगी। जी समझिए आप किस बात की कि नहीं। इसको पढ़ लेते हैं। Any of the partner is taking active part or providing the services to the business, he is allowed to take a salary from the business for his services, which will be an expense for the business. नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, लेकिन ये पार्टनर और कारोबार के दरमियान के मामला आते हैं, इसलिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है, ये एक्सपेंसेस में, इनकम स्टेटमेंट में नहीं आती। इट इज यूज्ड फॉर द डिसबर्समेंट ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एवरी पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स इन एडिशन टू प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट लॉस के अलावा उसको अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, और ये पार्टनरशिप पार्टनर्स आपस में मिलकर तय करेंगे कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रखना है, 5%, 6%, 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, बिजनेस विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन ईच पार्टनर ड्राइंग्स। अगर आप ड्राइंग्स करोगे तो उस पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस को पे करना पड़ेगा, जो बिजनेस की इनकम होगी वो बिजनेस के प्रॉफिट में ऐड होगी, और हमारे पैसों में से क्या हो जाएगी, पार्टनर्स के पैसों में से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम अकाउंटिंग में कौन है, हम बिजनेस हैं, पार्टनर्स नहीं है, हम बिजनेस हैं। जी, तो ये 3 चीजें हमने पढ़ी हैं।
इनकम स्टेटमेंट एज इट इज बनेगी, कोई चेंज नहीं है. प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन क्या, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द डिसबर्समेंट एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स. फिर बारी आती है करंट अकाउंट की. करंट अकाउंट इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट. Its normal balance of capital is credit. That's why normal balance of current account is also credit. All the things relating to profit distribution and drawings will be dealt through current account rather than capital account, as capital will remain fixed in partnership accounts. क्योंकि मैंने बताया था कैपिटल फिक्स रहेंगे, लिहाजा जो भी चीजें प्रॉफिट से रिलेटेड होंगी वो करंट अकाउंट के थ्रू की जाएंगी. तो all those things which are subtracted from appropriation account will come on the credit side, and all those things which are added in appropriation account will come on the debit side of current account, including drawings. When fixed capital accounts are maintained, current account balance will be given in the question separately. तो fixed capital account का सवाल होगा तो capital account अलग दिए होंगे जो fixed होंगे, और current account का balance अलग से question में आपको दिया होगा, और ये current account का फॉर्मेट आपके सामने मैंने रखा है. अब आपको लग रहा होगा कि सर आसान तो है लेकिन समझ नहीं आ रही. इसकी कोई एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू जो है वो हम इसको मतलब इजीली समझ सकते हैं. ये देखिए आप, ये मैं अज्यूम करता हूं जी कि मेरा, हम क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर नेट प्रॉफिट. मेरा नेट प्रॉफिट दिया हुआ कितना, वो दिया हुआ आपको 10,000. इसमें ऐड कर देंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ठीक है जी. अब सपोज करें कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो दोनों की ड्राइंग्स हैं वो 10-10 हजार है, तो एक ही 10,000 ड्राइंग्स पे कितने परसेंट इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं. एक की ड्राइंग 10,000 है, उस पर कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, 3%. तो कितना आ जाएगा 300. बी की ड्राइंग है 20,000 और उस पर परसेंट कितने इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा, 3%, वो आ जाएगा 600. टोटल कितना आ जाएगा 900, और ये हम ऐड कर देंगे 10,900 आपका हाल. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, दिस इज बेसिकली चार्ज बाय द बिजनेस. बिजनेस की इनकम होती है और पार्टनर्स के पैसों में से इनके करंट अकाउंट में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि इन ऑर्डर टू डिस्करेज ड्राइंग्स. Why they want to discourage drawings? Because you are getting interest on capital along with profit and loss. तो फिर ड्राइंग्स तो नहीं कर सकते ना. यानी अगर आप अपने सरमाए पर बिजनेस से इंटरेस्ट वसूल कर रहे हो तो इसी बेस पे वसूल कर रहे हो ना कि बिजनेस में पैसे हमारे फंस गए हैं या लगे हुए, ब्लॉक हुए हुए, आप निकलवा भी लो गाड़ी खरीदने के लिए अपनी, तो फिर तो आपको बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना. तो बिजनेस हमसे इंटरेस्ट, उस पर इंटरेस्ट वसूल करेगा, क्योंकि बिजनेस की इनकम होगी और पार्टनर्स के पैसों में से माइनस कर देंगे. इसमें से लेस कर देते हैं हम पार्टनरशिप सैलरी. सपोज करें वो ए को हम दे रहे हैं क्योंकि ये अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है 5,000 की, क्योंकि वो एज ए मैनेजर के तौर पे काम भी कर रहा है. तो बाकी आ जाएगा 5,900. इसमें से हम लेस कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. मैंने बताया था जिस बंदे ने सरमाया सबसे ज्यादा लगाया हुआ था ना, उसने कहा भाई मेरा सरमाया ब्लॉक हो गया, मुझे तो उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो दो ना. हो सकता है बिजनेस में लॉस हो जाए, लॉस हो गया तो मेरा तो 1 करोड़ रुपया बिजनेस में लगा है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंडीशन भी लगा ली और वो भी हमने इसमें से माइनस की. तो वो आपका आ जाएगा जी ए और बी. सपोज करें इसका कैपिटल जो है वो 1 लाख है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 8% है. कितना आ जाएगा इसका 8,000. इसका कैपिटल 80,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है 8%. कितना आ जाएगा 6,400. टोटल करेंगे तो आ जाएगा 14,400 आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो आप देखिए अगर इसमें से माइनस करें तो आपको लॉस आ रहा है, क्योंकि देखो बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. लॉस होगा तो वो भी आपको पार्टनर्स को शेयर करना पड़ेगा अपनी प्रॉफिट लॉस शेयर रेशियो के हिसाब से. तो लॉस आपका आ रहा है कितना 8,500 का. ठीक है जी. तो वो कहते हैं कि जी 8,500 का लॉस आ रहा है
और लॉस जो है प्रॉफिट भी शेयर हो जाएगा, लॉस भी शेयर हो जाएगा पार्टनर्स में, ए और बी में। सपोज करते हैं इनकी रेशियो जो आपस में है वो 2:1 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो 2/3 इसको चला जाएगा, लॉस 1/3 इसको चला जाएगा। निकाल लेते हैं, 2/3 आता है 5,667 और 1/3 जो है वो आता है 2,833। टोटल आपका वही हो जाएगा 8,500 जो कि लॉस आपका आ रहा है। ये आपका प्रोविजन अकाउंट मैंने बना के आपको दिखा दिया, इस फॉर्मेट में ये बनता है। अब यहां से हम बनाते हैं आगे करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट कैसे बनता है वो भी इसी के थ्रू बनता है, ठीक है ना। जो चीजें यहाँ पे ऐड हो रही है ना वो करंट अकाउंट में लेस हो जाती हैं, लेस होने का मतलब है डेबिट हो जाती है, और जो चीजें यहाँ लेस हो रही हैं वो करंट अकाउंट में ऐड हो जाएंगी, ऐड होने का मतलब है क्रेडिट हो जाती है। क्यों सर? करंट अकाउंट इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, बिकॉज कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिट, दैट्स व्हाई करंट अकाउंट में बैलेंस भी क्रेडिट होता है। इसका मतलब है करंट अकाउंट अगर क्रेडिट होगा तो बढ़ेगा, डेबिट होगा तो कम होगा। अब प्रॉफिट से करंट अकाउंट बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे आएगा, ड्राइंग से करंट अकाउंट कम होगा तो ड्राइंग्स डेबिट साइड पे आएंगे। इसी तरह यहाँ जो चीजें ऐड हो रही हैं वो माइनस हो जाएंगी वहां जाके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट साइड पे आएगा। सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होना है तो वो क्रेडिट साइड पे आप लिखेंगे। ठीक है जी, तो ये देख लें, इसको लिख लें आप, और मुझे बताएं यहां तक कोई मसला है? जी बताएं अनस, कोई मसला है तो बताएं यहाँ तक। चमन कोई प्रॉब्लम है तो बताएं ताकि मैं आगे चलूं। नहीं सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस करंट अकाउंट बता दें। वो तो भी बताना है ना मैंने ऑब्वियसली। जी चलते हैं जी आगे हम, इसको मिटाने लगा हूं मैं, आपने लिख लिया होगा। वैसे बुक में सब कुछ मौजूद है, फॉर्मेट सब मौजूद है बुक में, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द बुक। देखते हैं जी करंट अकाउंट के हवाले से, ये सामने करंट अकाउंट आ गया। करंट अकाउंट हर पार्टनर का अलग अलग बनेगा। अगर आप गौर करें करंट अकाउंट के ऊपर तो आप देखिए इसका जो ब्रॉड डाउन है वो क्रेडिट पे भी आ रहा है और डेबिट पे भी आ रहा है। सर ये कैसे? भाई करंट अकाउंट लॉस भी तो हो सकता है ना आपको, अगर पिछले सालों का लॉस मौजूद है तो वो करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट आएगा, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे ही आएगा। ठीक है जी, या यू हैव आपने ड्राइंग ज्यादा कर ली, जितना करंट अकाउंट में पैसे पड़े हुए थे, यू हैव विथड्रॉन मोर अमाउंट देन योर करंट अकाउंट, तो अभी बैलेंस डेबिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। डेबिट साइड पे क्या आती है आपकी, इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ड्राइंग्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट पे आएगा क्योंकि वो एड ऑन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट पे आएगा, पार्टनरशिप सैलरी भी क्रेडिट पे आएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है उसमें डिस्कस बाद में करेंगे, और आपका बैलेंस क्रेडिट में आ जाएगा। तो ये करंट अकाउंट का फॉर्मेट जो है ना वो आपका है, जिसके सर, तरीके जब से प्रॉफिट साइड पे। अब आप गौर करें इसके अंदर, करंट अकाउंट इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, इसकी नेचर वही है कि प्रॉफिट डिसबर्समेंट्स के लिए, सॉरी क्या कहते हैं, जो जो प्रॉफिट हम कैपिटल में एडजस्टमेंट्स करते थे वो सब करंट अकाउंट में होंगी, तो प्रॉफिट किस में ऐड होगा? करंट अकाउंट में, इसलिए क्रेडिट साइड पे आ रहा है। ड्राइंग किस में से माइनस होंगी? करंट अकाउंट में से, इसीलिए डेबिट साइड पे आ रही है। उसके अलावा आप गौर करें, जो चीजें एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या हो रही हैं, जो चीजें एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऐड हो रही हैं वो यहाँ लेस हो रही हैं। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वहां ऐड हो रही है, लेस हो रहा है। सैलरी और कैपिटल वहां पे लेस हो रहा है, यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिखा जा रहा है कि ऐड हो रहा है, क्योंकि सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंस है, माइनस हो जाएगा और उनके करंट अकाउंट में पैसे बढ़ जाएंगे उसकी वजह से। सैलरी मिलनी है ना उसको, जिसको भी दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस चार्ज करेगा तो वो बिजनेस की प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा और उनके करंट अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। ये हम करंट अकाउंट क्यों बनाते हैं? क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड रहेगा,
कैपिटल की अमाउंट को हम चेंज नहीं करेंगे, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डेल्ट थ्रू करंट अकाउंट। जी आप कुछ पूछ रही थी। चमन आप कुछ पूछ रही थी, अनस कुछ पूछ रहे थे, आप बताएं। सर मैं ये पूछ रही थी कि जब प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट, तो डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड पे करंट अकाउंट के? जी प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड पे आएगा, लॉस होगा तो डेबिट साइड पे आएगा, क्योंकि प्रॉफिट करंट अकाउंट में क्या करेगा, इजाफा करता है, इजाफा करेगा तो क्रेडिट होगा, लॉस करंट अकाउंट में कमी करता है, कमी करेगा तो डेबिट होगा। ठीक है। ठीक है जी, तो ये हमारा फॉर्मेट था करंट अकाउंट का। अब इसके कुछ क्वेश्चन है, वो हम जो है वो सॉल्व मैं आपको करने की कोशिश करता हूँ, थोड़े से एक आधा, थोड़ा सा टाइम तो है, तो शायद कोई टाइम बन जाए। जी पार्टनरशिप यहाँ पर किधर है जी, 413 में ख्याल लिखा हुआ है। देखते हैं जी, ये देखें, एक्सरसाइज हम देखते हैं 8 में। 8 एक्सरसाइज को अगर आप देखें, इसकी पिक्चर ले लें, पिक्चर भी ले लें, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है आपको, ठीक है जी, और साथ में उसने कहा है जी कि ड्राइंग्स भी दी हुई है आपको दोनों की। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है 50 का। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग टर्म्स, interest on drawing is allowed at 2% per annum, interest on capital is allowed at 1% per annum, Porky is entitled to a salary of $10, or agreed to share profit and losses in the ratio of 1:1। 1:1 का मतलब है इक्वल, 1/2 1/2 हो जाएगी ना। कहता है इसके एप्लीकेशन अकाउंट आपने बनाना है पॉर्किन हैमी का, तो बना लेते हैं। इसकी पिक्चर आपने मेरे ख्याल ले ली होगी, तो हम इसका अकाउंट अगर बनाते हैं, प्रॉफिट जो है वो हमें दिया हुआ है, मेरे ख्याल है 1000 है, एड इसमें कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखें जरा, प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 50 का, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है जी, वो आपको दी हुई है 2%, ड्राइंग्स कितनी है 200 और 100। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है जी 50 का, तो पॉर्की और हेमी 200 का 2% कितना आ जाएगा जी 40, और 100 का 2% कितना आ जाएगा जी 10। ये ऐड कर देंगे आप, का 2% मुझे लग रहा है 4 आता है शायद, हाँ 4 आता है 2%, 4 और 1 आएगा। देख भी लेते हैं, वो है इतनी 200 और 100 ही है। 200 का 2% 4 आ जाएगा, 100 का 2% 1 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5, ऐड हो जाएंगी 55 आ गया। लेस कर देते हैं इसमें से हम पार्टनरशिप सैलरी, अगर किसी को दे रहे हैं, देखते हैं किसी को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। सैलरी हम दे रहे हैं पॉर्की को कितनी, $10, सैलरी पॉर्की कितनी है जी 10, ये माइनस हो जाएगी तो ये रह जाएगा आपका 45, लेस होनी है ना, इसमें से लेस कर देंगे हम
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वही दोनों का है, पॉर्की और हेमी का। कितना कितना देखते हैं, कैपिटल पर होना है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 1000 पॉर्की कैपिटल है, 500 उसका है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी परसेंटेज दी हुई है आपको सवाल में, वो है आपकी 1%। 1000 का 1% अगर आप निकालें तो वो 10 आ जाएगा, 500 का 1% निकालें तो 5 आ जाएगा, 15 आप माइनस कर देंगे तो ये 30 आपका प्रॉफिट शेड आ गया। और ये दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पॉर्क्यूम हेमी में कितना कितना, 15 और 15, टोटल आपको सारी बात है वही बनेगा 30 का। ठीक है जी, ये मैंने आपको अप्रेशिएशन अकाउंट बनाकर दिखा दिया है कि कैसे बनता है। अब इसी के थ्रू हम करंट अकाउंट बनाएंगे, बड़ा ही आसान है करंट अकाउंट बनाना, लेकिन सवाल में करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया हुआ। इन करंट अकाउंट अगर आपने बनाना है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि करंट अकाउंट में जो चीजें अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऐड हो रही हैं वो वहां लेस हो जाएंगी, और जो लेस हो रही है वहां ऐड हो जाएंगी। लेस होने का मतलब है डेबिट करना पड़ेगा आपको उसको, और ऐड होने का मतलब है क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, बिकॉज कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए। एंड नाउ बिकॉज वी आर मेंटेनिंग फिक्स कैपिटल अकाउंट, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डेल्ट थ्रू करंट अकाउंट, राइट। तो हम देखते हैं कि करंट अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। और की का और हेमी का इकट्ठे आप बनाएंगे ऐसे। यहाँ पे आपका आया था ब्रॉड डाउन बैलेंस, अगर कोई दिया होता तो मैं लिखता, डेबिट बैलेंस भी हो सकता था, लेकिन नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, प्रॉफिट शेयर किया उन्होंने, कितना है 15 और 15। इधर क्या आ जाएगा जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स भी इधर आएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना निकला था हमारा, 4 और 1। ड्राइंग्स कितनी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, वो हम देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन उसने बताई हुई है। ड्राइंग्स दी आपकी 200 और 100, 200 और 100। इधर आपके आ जाएगा जी सैलरी, क्योंकि ऐड करना है ना सैलरी, तो पॉर्क्यू को मिल रही है $10 की, और आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर लोन भी इधर आता है लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना निकाला था जी हमने, मेरे ख्याल में 10 और 5 निकला था। मैं इसका अकाउंट अब मेंटेन कर लेंगे। दोनों का अकाउंट अगर आप देखें तो डेबिट बैलेंस आपका दोनों का अकाउंट का डिफरेंस निकाले तो ये कितना आता है 204, इधर भी आ जाएगा 204, इसमें से माइनस कर देंगे आप कितना 45, 204 में से 45 माइनस करें तो आपका कैरी डाउन आ जाएगा इधर। जैसे ये 101 का बैलेंस आएगा, इसमें से 20 माइनस कर देंगे तो 81 इसका कैरी डाउन आ जाएगा, जो कि नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा ब्रॉड डाउन। 4 में से माइनस करें 45 तो कितना आता है, ये आ जाएगा 159, इसका ब्रॉडर बैलेंस आ जाएगा 159। ये बैलेंस कैरी डाउन यहाँ भी आ सकता था, तो मैंने करंट अकाउंट ही बना के दिखा दिया उसी क्वेश्चन के ऊपर। कल इंशाल्लाह ताला मजीद क्वेश्चन इसके करेंगे और हम देखते हैं कि इसको किस तरह हम सॉल्व करेंगे। इसमें कोई मसला है तो मुझसे पूछे, टाइम खत्म हो गया। एनी प्रॉब्लम अनस, इतना ही सिखाना था मैंने, आपने कोई घर में कोई सवाल नहीं दिया मैंने आपको करने के लिए, इतना ही काफ़ी है। कोई मसला है तो मुझे बता दें, अगर आप एक आधा सवाल करना चाहते हैं तो फिर आप मैं आपको दे देता हूँ, आप जो है वो मैं देख के बताता हूँ आपको। ये एक्सरसाइज 9 है, इसको हम रहने देते हैं। ये एक्सरसाइज 7, इसकी पिक्चर ले लें, ये कर लीजिएगा घर में। इसकी पिक्चर जल्दी से ले लें, टाइम खत्म हो गया। इसकी पिक्चर ले लें घर में, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसकी पिक्चर ले लें, इसको सॉल्व कर लीजिएगा घर में जी। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओके देन, पिक्चर आपने ले ली होगी, सारी बात है। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।